Hello from the wedding school and the entire team at the wedding school. This is Marisha Parekh. I'm the CEO. And for everyone else who knows me as Marisha Parekh, yes, I'm the same. Nothing changes. These fancy titles are nothing but an add-on responsibility. I'm sure every entrepreneur who's joining me live here will understand and resonate and will definitely agree with what I'm saying. Oh, so I'm going to say hi firstly to Deepika, the backbone of the wedding school, who is right now too busy in life, attending to a lot of wedding aspirants who are looking at doing the course with us and studying wedding planning and design decor. And I also have Sweetie, the next backbone, right here. And I have Poonam also here. Hi Poonam. I cannot tell you how many compliments we have received for your episode on my podcast. People from my industry, they feel so inspired and they felt like, okay, this is something offbeat for them to listen to, which is about physical fitness, mental health, and to have you as a great inspiration. It's so important for us, in our industry to look beyond ourselves and not get consumed. And Poonam, you really brought that fresh change in. I hope you're doing well. And I do keep following whatever you're doing on your page. And I wish you lots of love and requests is coming now finally from Vishal. So Vishal's going to be my special guest. I'm going to introduce him after and here we have Vishal. Hello, Marisha ma'am. How are you? I'm good. How are you? Yeah, ma'am, I'm good. Listen, this is an unbelievable moment. पहले तो आपने शादी कर ली, तो उसके लिए congratulations. Thank you so much. Thank you so much. And tell me, how is it going? It's just been a couple of days, I think. Yes, so we got married on 17th April, and now Sorry, Vishal, I lost you. I lost you. You said you got hello. married on 17th April. 17th April, yes. And are you back to work? Yes, we are at the work now. Very bad, very bad. This is not good. This is a dedicated wedding planner. I understand that, but not good. But She's she's gone also on in a this field, so she understands better. so she only must have said like, ठीक है, let's get back to work. बहुत हो गया. Yes. Okay, everyone who's joined us on the Insta Live, basically, I have Vishal with me, and I'm very proud to do this part of introduction. My association with him started with a wedding in which he was freelancing with Swaha. And then he went on and decided that he is truly meant to conquer this space. And he had enrolled with the wedding school and he studied with us. He was a very ambitious guy from the beginning. And he started his own company that year itself called Evening Unfolds. I can see the nice branding behind you. And then, of course, he has gone on to do lots of weddings in his base city, Udaipur. And along with that, lots of destination weddings. I think in most of your favorite spots across India. And a lot of his work has been appreciated. Clients to karte hi uska kaam basan. But I think industry has also taken note of his company. Vishal, I'm very proud of you. Congratulations. Thank you so much, ma'am. It's all because of you and Zeman sir. No, no, no. I think this is just like we are just the lucky ones to be able to hold your hand and kind of walk you in the right direction. But after that, every individual has a very tough journey, and you have really done very well. And you are very blessed to have your beloved with you as a partner in crime. Yes. Sweetie is writing, "Hello, Vishal. So glad to see you here." Hello, sweetie ma'am. Tell me, Vishal, I have some questions for you. Okay, so for everyone who's joining us and listening to this chat, basically, we have this fun alumni group called the TWS Tribe, where
our ex-students like Vishal are there, and this tribe basically works as a great platform for all the students to network with each other. Some of them are having goals and aspirations to do their own business, run their own company like Vishal. Some of them are very happy working full time with either a decor company or a planning company or a technical space. And some of them have not continued in our industry, but they continue to enjoy the chats we have on Tribe Group. And they at least feel like they are part of this space, even if they were not able to professionally shift gears from their existing job profile to entering the wedding industry. So it's an awesome group that we have. It's called TWS Tribe. And I see one of the most generous tribe members is actually Vishal, and I'm not saying this because he's on the live chat with me, but genuinely, anyone asking for any kind of help, and you will see him being like the first to respond. First Choice Events is writing, proud of you, Vishal. Vishal, you got a fan following, bro. And I think for me, Vishal, that's a very, very unique quality to have. While some of the most seasoned and senior players I see get very insecure and don't like to help out others. I see you as somebody who's relatively much younger in the space. Your company is young, you yourself are young, but you are so giving when it comes to just helping people network with the right and giving them the right connect. Tell me, how are you in such a comfortable, confident space? Vishal, can you hear me? Yes, yes, I can hear you. Yeah, so I was asking, how are you in such a comfortable and confident space that you're always helping everyone in the tribe and helping them connect with the right people? तो मेरी जर्नी में जो मैंने एक चीज सीखी है हेमंत सर से, so he told me when we were in the live session that Vishal, if we are not perfect in any department, then hire जो कि उस डिपार्टमेंट में उस पर्टिकुलर पार्ट में परफेक्ट हो. ऐसा नहीं हो कि हर हर चीज आप कर सकते हो. जिस चीज में आप माहिर हो वो आप करो, जो चीज आप नहीं कर सकते हो उसी के लिए उसी इंसान को हायर करो जो उस इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है. तो उसी लाइन को अभी तक मैं फॉलो कर रहा हूँ, एंड नाउ वी आर यूजिंग ईच एंड एवरी वन फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ इंडिया. भले वो फायर वर्क्स में हो, भले वो आर्टिस्ट में हो, भले वो किसी भी चीज फील्ड में हो, भले वो इंडिया Yes. के किसी भी कोने में हो. तो जहां पे हम परफेक्ट नहीं है हम उसी इंसान को वहां से हायर कर रहे हैं. इवन I, आर प्रोजेक्ट मैनेजर्स ऑल्सो. अभी वेडिंग स्कूल से हमारे जो हमारे बाद वाले बैचेस है उनको भी हमने काफी यूज किया है. लाइक वी आर यूजिंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर्स अक्षिता मेहरोत्रा, महिमा जैन, अनुजा. यस, दे आर वर्किंग फॉर अस. या this is awesome. See, I don't even get to know all this. मैं तुम लोगों की टच में भी रह ही नहीं पाती हूँ, but this is great news. यस, अनुजा अनुजा हमारे साथ काम कर रहा था उसने 1 साल तक. शी हैड वर्कड फॉर डेकोर डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन, जिसने काफी अच्छे अच्छे मूड बोर्ड्स बहुत सारा यूज किया है. एंड स्टिल शी इज वर्किंग फॉर अस, हेल्पिंग अस टू गेट अस गिव अस द न्यू मूड बोर्ड्स. एंड Akshita and Mahima is also helping us to manage all the execution at the time of the wedding. The Rafael's wedding, Akshita was with us that time. Really? Oh Yes. my God. This is She was our assistant wedding planner that time. And recently we have done a wedding at ITC Mementos Ekaya. So Mahima was also there. Mahima Jain, yes. nice. Nice. Truly commendable. Tell me a little more about that Raffles project, which went viral also. So it was a very big project. We were working for this project from last 2 years. Like in Don't 2000, yes, 2020 थर्ड स्टार्टिंग से हमारा उनका साथ क्लाइंट के साथ में कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था. And after that we have started our planning, searching for good vendors, and there was multiple department also, like creative fireworks, the drone show. That was a The drone show was the first drone show who had done in Udaipur. The first local planner is us, जो Oh, हमने अभी तक किया है. Yes. very nice. बाकी सारी और भी कंपनीज ने किया है, बट दे आर नॉट फ्रॉम उदयपुर. बट फ्रॉम उदयपुर वी आर द फर्स्ट वन हु हैड कंप्लीट द ड्रोन शो. सो दैट वाज आल्सो अ बिगर प्रोजेक्ट.
बट वही चीज हमारी हेमंत सर वाली काम आई कि विशाल जिस चीज में परफेक्ट ना हो उसमें हाँ उन लोगों को हायर करो। तो हमने हायर किए थे अराउंड 64 मेंबर्स अक्रॉस इंडिया फ्रॉम हाँ। मल्टीपल सिटीज, कुछ इंदौर से, कुछ दिल्ली से, कुछ बॉम्बे से, कुछ अहमदाबाद से। तो हमने हर एक उसको हायर किया। एंड राइट, उसके बाद में जैसे हायर किया उनके बाद में वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब। आई थिंक इट जस्ट हेल्प्स यू ना कि जो जो लोग अपना काम जानते हैं उनको रोपिन करने में अपना काम और बेटर दिखता है। यस मैम। दिस इज ट्रूली गुड। आई एम श्योर हेमंत सर भी थोड़ी देर पहले थे तो सही। आई एम श्योर ही इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। नहीं, व्हेन आई उनका आता है, टोल्ड मैसेज आता है काफी टाइम, हर बार जब भी कोई नई चीज हम पोस्ट करते हैं, नई चीज हम करते हैं, उसके लिए अप्रिसिएशन मैसेज हमेशा आता है उनका। टेल मी विशाल, आप आई थिंक शायद वन ऑफ द फर्स्ट प्लानर्स थे जिनको मैं बोल सकती हूँ कि जो लोकली उदयपुर से बिलोंग करते थे। बाकी हाँ पूरी जी। दुनिया के वहां पे काम करके जाती है। एंड क्लाइंट्स का भी एक माइंडसेट था उस टाइम पे 2-3 साल पहले तक कि नहीं, प्लानर हो तो फिर बॉम्बे से हो, हैदराबाद से हो, दिल्ली से हो। हम्म। एंड भले ही शादी उदयपुर में हो रही है, शायद डेकोर लोकली कर लेंगे, बट प्लानर हमेशा बाहर से ही लेते थे। टेल मी उस टाइम पे कितना आपको चैलेंजिंग लगा और आज आपने कितना चेंज कर लिया है? बाकी लोग भी आपको देख के इंस्पायर होके प्लानिंग में डेफिनेटली आए हैं। अब माइंडसेट कितना आपको लगता है अलग है क्लाइंट्स का? उस टाइम पे थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी आती थी, लाइक जैसे भी बात करते तो क्लाइंट बोलते थे कि नहीं, हमारा प्लानर से बात हो रखी है, इफ यू कैन हेल्प अस विद सम लोकल सोर्सिंग एंड ऑल, इफ यू कैन हेल्प अस विद डेकोर, मतलब जितना कम हो उतना सर्विस ना। बट राइट नाउ उदयपुर में कोई भी क्लाइंट अगर आता है, हाँ। भले वो किसी भी क्राइटेरिया हो, भले वो फेयरमाउंट के लिए हो, भले वो राफेल्स के लिए हो, भले वो एक छोटी सी होटल के लिए हो, डेफिनेटली उसका मैसेज हमारे पास एक बार तो जरूर आएगा। दिस इज रियली कमेंडेबल विशाल। मैं बता नहीं सकती आपको कि ये सुन के मुझे इतना अच्छा लगता है, बिकॉज ये जो एक माइंडसेट था ना कि लोकल लोग हैं तो उतना सिस्टम बेस्ड काम नहीं होगा, हम्म। प्रोफेशनल सेटअप नहीं होगा, एक कम्युनिकेशन की एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई थिंक यू हैव मैनेज टू इम्प्लीमेंट आपकी जो एबिलिटी है ना टू लर्न, ग्रास्प, लर्न। आई रिमेम्बर आप जब क्लासेस भी अटेंड करते, अगर आप इवेंट पे भी थे, यू यूज टू स्टिल लॉग इन, चाहे वीडियो ऑन नहीं करते थे। ये मेरी हमेशा शिकायत रहती थी। मैं मैसेज भी करती थी हमारे कोर ग्रुप पे कि विशाल क्यों वीडियो ऑन नहीं करता, इट्स माय रूल, इट्स माय रूल। एंड दे यूज्ड टू से नो, ही इज एट एन इवेंट बट ही स्टिल इज लिसनिंग, क्योंकि उसको कुछ भी मिस नहीं करना है। तो यस, आई स्टिल हैव माय नोटबुक, जो कि आपकी कभी भी मुझे कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं उसमें चेक करता हूँ। यस, जो कि मैंने मेरे हाथ से लिखे थे, कहीं कॉलेज में मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, बट हाँ, यहाँ पे मैंने सारी चीजें नोट करी थी। नोट। दिस इज सो गुड, सो गुड। आपके थ्रू तो हम बहुत सारे अपकमिंग बडिंग वेडिंग एस्पिरेंट से मिले भी है, जो हमेशा हम हमें बोलते हैं दैट विशाल ने हमें आपके बारे में बताया। टेल मी, अब नया प्रॉपर्टी खुला है फेयरमॉन्ट। फेयरमाउंट उदयपुर, यस। Yes, in Udaipur. Tell me, how is it? What's your take? How is the excitement for the new property in the city? सो अभी तक उदयपुर में सारी कंपेरेटिव प्रॉपर्टी थी कि जिसमें आप राफेल्स में भी जा सकते हो, आईटीसी में भी जा सकते हो, बट इस प्रॉपर्टी ने थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा कंपटीशन हायर कर दिया है। कि उसके लिए आपको, अगर जैसे साल के आपके पास 15 से 20 क्लाइंट है, तो वो वाला क्लाइंट ऐसा है कि साल के 2 या 3 होंगे जो फेयरमाउंट चूज करेगा। बट हम खुशी से बता सकते हैं कि वी हैव अ क्लाइंट दैट वी आर डूइंग अ वेडिंग इन फेयरमाउंट नेक्स्ट ईयर। Wow, यस। commendable, या। commendable. It looks great in pictures, and I Yes, see ma'am. that it's Definitely, one of but the. it's in reality also. It's a very big property on the hill. So they have very big venues, multiple rooms, 300 plus rooms. Yeah. So it's a Tell real me, mean of luxury. it is, it Yeah. is. Tell me, अब आपकी शादी हो गई है, पहले आपकी नाउ वाइफ, पहले आपके साथ बिजनेस पार्टनर थी। टेल मी, कैसे आप केमिस्ट्री मैनेज करते हो, एंड हु टेक्स अप व्हाट रोल्स, हाउ डू यू ऑल डू दिस? So she's too much mature than me, to be honest. That is the case with all women. I hope Hemant sir is listening to you, your favorite Hemant sir.
Sorry, because Vishal, I'm going to women say are a quick. always right. I'm going to say a quick hi to Rituraj sir, who is also joined us and is saying hello to us. So, Hello, sir. Hello, Godfather, sir. Godfather. Yes, I have Yes, saved yes, his sir. number as a Godfather. You have. Oh, Yes. we also have. Oh, Sweetie's laughing. I'm sure she's laughing on the fact that your wife, your wife. Please tell me her name. Saloni, right? Saloni, Saloni. Yes, I remember. Rituraj is saying hello to you. Hello, Uh, sir. How are you, sir? Akshita, Deepika are laughing. I'm sure they're laughing on the fact that you said that Saloni is more mature than you. कहीं पे भी कोई भी डिसीजन की बात आती है तो उसका डिसीजन ऑलवेज राइट, मतलब होता है कि किसी टाइम पे मैंने मिस भी किया है और मिस करने के बाद ऑलवेज आई रिग्रेट कि मैंने क्यों उस टाइम पे वो चीज नहीं करी, इवन इन इवेंट लाइफ ऑल्सो एंड इवन इन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो। दैट इज ट्रू, वुमन्स आर ऑलवेज राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि सलोनी बाजू में बैठी है और तुम इसलिए डर के मारे बोल रहे हो? नहीं, बट वो वीडियो कहीं ना कहीं से देख ही रही, इसलिए मुझे डर है। गुड वन, गुड वन। आई थिंक एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है ना जब यू एंड योर स्पाउस आर इन द सेम बिजनेस, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो एक चाहिए स्पाउस से, स्पेशली इन आवर स्पेस जहाँ पे इतना स्ट्रेस का काम रहता है, डिलीवरी ऑन टाइम ऑन पॉइंट देनी ही पड़ती है, नो एक्सक्यूजेस। ऐसे माहौल में इट्स सो नाइस टू हैव somebody who can understand and share that pressure, pain and joy. इवेंट प्लानिंग में रिलेशनशिप इज टू हार्ड, अगर आपको अगर समझने वाला नहीं मिले तो इट्स फर्स्ट थिंग इज टाइम। टाइम जो आप कभी दे ही नहीं पाते, पर्सनल टाइम होता ही नहीं है। इवेंट Yeah. टाइम है जहां पे आपका सेटअप अगर टाइम से पहले हो गया, यू कैन सिट टुगेदर एंड हैव अ चैट। बाकी अगर नहीं हुआ है तो दोनों एक दूसरे पे चिल्लाओ, वेंडर्स पे चिल्लाओ, जल्दी जल्दी काम करवाओ। तो बहुत ज्यादा चीजें हैं, बट इवेंट इंडस्ट्री में होने से काफी ज्यादा चीजें इजी हो जाती है। Yes. किसी और का मूवमेंट होता है, पर्सनल मूवमेंट, कोई वरमाला हो रही है तो आपस में एक दूसरे को आई कैचिंग करके समझ जाओ कि ये अपना भी होगा ऐसा, और हमारा भी अभी रिसेंटली हुआ तो इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग फॉर अस। है ना? हाँ जी। No, no, it looked great. I saw the pictures. I thought it just looked awesome. It did full justice to evening unfolds. So proud of both of you. थैंक यू सो मच मैम। Tell me, what is your um I'm sure there are lots of things जो एक learning रहती है, but tell me आपको क्या लगता है कि जो इस इंडस्ट्री में आ चुके हुए लोग हैं, स्पेशली लास्ट 4-5 years में, entrepreneurs जो इतने बड़े नंबर में हमें दिखते हैं, नॉट जस्ट इन बिग सिटीज, 2 tier 3 tier में तो मतलब इतना कंपटीशन हो गया है। टेल मी कि अगर आपको एक डिफाइन करना पड़े, एंड दिस इज नॉट टू प्रमोट इवनिंग अनफोल्ड बट जस्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट आप ऐसा क्या अलग से करते हैं, या व्हाट इज इट दैट यू ट्राई टू डू सो दैट जो क्लाइंट है वो आपके पास आ जाए क्लोज करने के लिए, नॉट जस्ट मॉनिटरी बेनिफिट बट उसके अलावा आप क्या ऐसा करते हो विच कैन एक्चुअली इंस्पायर पीपल हु आर लिसनिंग टू यू राइट नाउ, कि ऐसा क्या डिफरेंट होता है? द फर्स्ट थिंग विच आई हैव लर्न, बी रियल, डोंट मेक फेक कमिटमेंट्स। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लानर्स क्या होते हैं स्टार्टिंग एज में क्या करते हैं कि उनको अगर काम लेना होता है क्लाइंट से या फिर उनसे कुछ मतलब उनको लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हमें अगर प्राइसिंग के लिए तो वो क्लाइंट लेके चले जाएंगे, ये लेके चले जाएंगे, तो हमेशा रियल रहो और फेक कमिटमेंट कभी मत करो। हमेशा प्रैक्टिकल चीज क्लाइंट को समझाने की कोशिश करो कि सर ये चीज है, ऐसे होगी और ऐसे हम आपको करके देंगे, और ये ही चीज हम आपको एज इट इज करके देंगे। क्योंकि आजकल प्रिंटरेस्ट के जमाने में और रील्स के जमाने में क्या है कि लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं, मतलब उनको लगता है कि जो चीज हमें इसको दिखा रहा है वो क्लाइंट उतने में वो कर, इवेंट प्लानर इतने में करके दे देगा, वो करके दे, तो ये कंपटीशन वाला कंसेप्ट है ही नहीं हमारे माइंड में। हमारी खुद की एक अलग रेस है, हमें ज्यादा वेडिंग्स नहीं करनी है, जरूरी नहीं हमें 15, 20, 30 करनी है, हम 5 करेंगे, 5 भी अच्छी करेंगे, समझ के करेंगे। क्लाइंट का एक पर्सनल टाइम है जो कि लाइफ में एक बार होता है, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे, छोटी से छोटी चीजों पे ध्यान देंगे। इवन भले वो सुबह का ब्रेकफास्ट हो, इवन भले वो आपका वरमाला की माला क्यों ना हो, हर एक छोटी से छोटी चीज पे ध्यान देना है। तो यस। यही चीज हमें थोड़ा अलग बनाती है कि एक मार्केट है, आप नए हो, बहुत लोग पुराने भी हैं जो काम कर रहे हैं, बट आप नए होके भी आप अगर कुछ नया एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ेगा, सोचने के साथ में करना भी पड़ेगा, वो क्लाइंट को फील होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में अगर कोई चीज चल रही है कि मैं ये कर दूंगा वो कर लूंगा, नहीं, वैसा आपको एग्जीक्यूट भी करना है, वैसा आपको दिखाना भी है और वैसा आपको करके भी दिखाना है। जैसे जो हमने राफेल्स वाला वेडिंग किया था, तो उसमें हमने जब स्टार्टिंग में था तो मेरे को खुद को डर था कि हाउ वी विल डू इट, इतनी सारी चीजें हैं, कितने इजीली हो जाएगी। और जब वो वेडिंग हुई, जब हमने उसको एग्जीक्यूट की, इवन मैं लॉबी से नीचे भी नहीं गया किसी और इवेंट्स में, मैं सिर्फ उस ग्रुप में ही चेक कर रहा था कि सारी चीजें टाइम से हो रही है, कपल की एंट्री हो चुकी है, एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। कुछ देर वर 7 इवेंट्स, बट उसमें से मैंने 5 ही अटेंड किए, 2 तो मैंने अटेंड ही नहीं किए। एंड देर वॉज आर टीम जिसको हमने इतने अच्छे से ब्रीफ किया था, हमने उनको काफी टाइम से रेडी किया था हर एक चीज को लेके, इवन डेकोर, एंटरटेनमेंट, शो फ्लो, सारी चीजों के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। जो Wow. हमने हमारा एल्गोरिथम हमने पहले ही उसको क्रिएट करके रखी थी, एंड देन वी एग्जीक्यूटेड द सेम। सो My. दिस थिंग इज मेकिंग अस डिफरेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री। Hmm. विशाल बहुत बड़े हो गए तुम, बाबा रे बाबा. Feels so good to hear this. You have lots of people who are commenting back. Quality has nothing to do with competition. This is Usman who is saying this. We have Hemang Jalan who has also logged in from Assam, Guwahati. Hi Hemang, I do know you. I remember we've interacted. श्रुति नेम ने जो अपने ट्राइब में भी है. यस आई थिंक यस यस। श्रुति आपकी शायद सीनियर थी. She's also here. Rituratso has also commented. I agree with you, Vishal. I think being able to give the right briefing to the team ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है जो आमतौर पे लोग काम करने में भूल जाते हैं. जितना हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उतना प्रोजेक्ट पे आए लोग अपना काम अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे, बिकॉज दे कम इनटू द प्रोजेक्ट फ्यू वीक्स बिफोर या few days before, but they need to understand the passion जो आपने 2 साल तक जिया है with that client. So it's a very important part which is handover rightly, so that you are able to manage a successful wedding even if you didn't go for 2 of the functions. यस, Tell me और one उसके thing. बाद भी मैम क्या होता कि वो हाँ. क्लाइंट उदयपुर आए ही नहीं थे, वो डायरेक्टली हाँ. वेडिंग में ही आए थे। ओनली कपल आए थे, वो भी वेन्यू को देखने के लिए। दे हैव नॉट डिस्कस एनीथिंग विद अस, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड ऑन द जूम कॉल ओनली। My एंड God. राइट नाउ See? जितनी भी हम वेडिंग्स करते हैं उसमें से 90% वेडिंग्स हमारी जूम कॉल पे डिस्कस होती है। वेन्यू वी आर फाइनलाइजिंग ऑन जूम कॉल, all the decor we are finalizing on Zoom call, everything we are doing on Zoom call, Nice. because right now we are just giving what can be done, not can be imagined कि ये चीजें हो पाएगी, नहीं, जो होगी वह ये होगी और ऐसा होगा, Right. that's it. Share the real picture. Yes, Interesting learning for all of us listening to him. Share the real picture. And for everyone who questions now, how can you study online? How can you work online? Business actually gets closed and semi executed, completely planned online. So it's really important to embrace technology, use it effectively, use it to your advantage. I think that's how even people like Vishal are able to service clients who are not even from the country, and are in different time zones, and yet you have to make yourself available and give them the service that they should feel कि यार ये मेरी सिटी में मेरे ही सामने बैठे और मेरे साथ काम कर रहे हैं. So ये बहुत ही important एक चीज होती है. Hemang is writing, nowadays the price is so much, that's why clients want to have a big fat wedding at a low cost, and because of this they hire cheap planner and freelancer and ruin, I see a spelling error, but ruin the wedding. Yes, Hemang, I do agree that a lot of them take that hasty decision. Unfortunately, ये गलत डिसीजन था, ये उनको शादी कंप्लीट होने पे पता चलता है, जब वो चेकआउट चल रहा होता है, जब गेस्ट अपना फीडबैक दे देते हैं, जब चाचा मामा नाराज हो जाते हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ, वहां पे अगर पैसे नहीं बचाए होते और एक प्रोफेशनल टीम को लेके बकायदा कंपनी को ले, मैं आपको बताऊंगी हिमांग, आप शॉक हो जाएंगे. ऐसे भी फ्रीलांसर्स है हमारी इंडस्ट्री में जो शायद इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे सिर्फ फ्रीलांस कर रहे थे, बट फिर भी वो क्लाइंट को अप्रोच करते हैं कि पूरी शादी उन्होंने की थी और इसीलिए नेक्स्ट शादी भी उन्हें मिलनी चाहिए, और क्लाइंट एक्चुअली इनकी बातों में आते हैं. सो यूल बी सरप्राइज, बट ये बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, क्योंकि आप कितना चेक करोगे इंस्टा पे कौन क्या डाल रहा है.
So it is very sad, but I think overall, Hemang, if you will go to see, वो एक फेज था लास्ट 2 years. आई थिंक नाउ इज द रिवाइवल फेज, जहाँ पे इतने लोगों ने ठोकर खाई है बाय नॉट हायरिंग द राइट कंपनी, that they have all spread it as a word of mouth, and finally filtering is happening in the right way, and eventually, like evening unfolds, truth will also unfold. Vishal, you got to pay me extra for all this marketing I'm doing. सब आप ही का है. देखा, ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, सब मेरा ही है. अब तुम ये सब सब आप ही मत बोलो, ये सब सलोनी का है, तुम्हारा भी नहीं है. का है. Okay, I'm going to say hi to many, many people. Shubham is here. Need to hear Vishal's take on how TWS helped him standing out in this industry. Okay, I didn't expect this. Okay, Vishal. Shubham is asking you to Hmm. tell how TWS helped you in standing out in this industry. Before that, I'm going to tell you, Sumit is saying you're a handsome boy. Sumit, Sumit, L-E, Sumit L, Lekhari. Yes, yes. Lekhari. Yeah. He's a very known choreographer in Udaipur. His company Oh, name is Sada Events. Yeah. lovely. And they had worked with Sweetie Ma'am with your Notangi company in ITC event as well. Oh, okay. Hi, Sumit. Hi. I'm sure Sweetie is here. She will definitely remember you. Looking forward to meeting you, Sumit. Rohan Mahar is writing Evening Unfolds Rocks. Neha Singh has also said hello. Yes, okay. So quickly, let's answer the question that is there. तो शुभम, यस, आई विल से कि TWS ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है. टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट कि हम एक लाइव में हैं या फिर ऐसी चीजें. मैं इस इंडस्ट्री में ही था, सारी चीजें थी. जब मैंने स्वाहा के साथ काम किया तो मुझे पता चला देयर इज अ स्कूल, देयर इज अ कॉलेज वेयर वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स. सो मेनी मीन्स आप प्रैक्टिकल चीज करते हो, सारी चीजें होती है. लाइक देयर इज अ एन एग्जाम्पल, देयर इज अ आर्किटेक्ट एंड देयर इज अ मेसन. So there are a difference. Both are making a home, but in a different way. So आपको क्या choose करना है? You want to be a mason or you want to be a architect? So it's up to you. That you will create a design. You will imagine first and then you will execute. This is a job of planner. So And then true. how you will learn? You will learn by TWS. There are so many colleges in India, but अब जो भी मुझसे कोई पूछता है लाइक उदयपुर से या फिर कहीं बाहर से भी कि सर आपने कैसे क्या किया, क्या चीज, तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि आप वहां पे जाओ और वहां पे जो भी सेशन हो उसको ध्यान से सुनना, समझना, और उसको फिर सीखने के लिए तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज लेना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप अगर चीजें अगर वीडियो में देखोगे आपको लगेगा कि आई विल एग्जीक्यूट. नो, यू कांट. यू नीड टू टेक अ प्रैक्टिस. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक बार. So true. आपको किसी कंपनी के साथ में वर्क करना पड़ेगा और जो जो लाइन आपने नोट करी उसको प्रैक्टिकल लाइफ में ला के देखो कि अच्छा सर ने अगर ऐसा बोला. मैंने एक चीज बहुत अच्छे से सीखी थी, जो आई डोंट नो द, मैं याद नहीं आ रहा है, माहेश्वरी जो ग्रूमिंग एक्सपर्ट है. यस. Yes, yes. हाँ, जिन्होंने हमारा एक सेशन लिया था, तो हाँ. उन्होंने ग्रूमिंग को लेके बहुत ज्यादा चीजें सिखाई थी. तो जब मैं मैं मेरी अर्ली एज में वो जब मीटिंग्स में जाता था तो मैं कुछ भी टी शर्ट पहन के या फिर मतलब कुछ भी पहन के चला जाता था. बट राइट नाउ अगर आप मुझे किसी मीटिंग में बुलाते हो तो डेफिनेटली आई विल बी इन सूट, आई विल बी इन फॉर्मल. मैं कभी भी वहां पे फंकी शूज जीन्स ऐसी चीज पहन के नहीं जाता हूँ. तो चीजें होती है जो आपको पता नहीं होती. आप कर सही रास्ते में होते हो बट आपको पता नहीं होती कि उसका सही रास्ता कौन सा, बिकॉज देर आर सो मेनी वेज इन दिस वर्ल्ड. बट Yes. यू रियली नीड टू नो कि विच विल बी द राइट वे. अगर आपको Smart कुछ boy. अलग दिखना है तो, इफ यू वांट कि ये अलग दिखना है इन वेडिंग इंडस्ट्री, देन भले आप कितने भी ज्यादा एक्सपीरियंस दो, आप एक बार एक वेडिंग स्कूल का एक 6 मंथ का सेशन या फिर जो भी आप ले सकते हो, देन यू विल गेट नो मोर डिटेल्स एंड यू विल लर्न ऑल्सो. So well put, Vishal. I think ये बहुत रियल बात आपने कही है, which is genuinely जो आप अप्लाई कर चुके हैं, कुछ यस. सीखा, कुछ समझा. एंड मुझे शुभम ये लगता है कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में नहीं मिल सकती है कि इंडिया की सबसे बेस्ट प्लेयर्स आपके ट्यूटर है, आपके टीचर है, आपके फैकल्टी है.
I mean, none of them would have taken the time to teach you. They do it because of the passion and because they love and respect the brand, the wedding school. उनको लगता है कि हाँ, अगर हमारे ये 3 घंटे देने से कोई एक इंसान अपना काम बेटर कर पाएगा तो why not? So it's a lot of real teaching, and like Vishal said, you will learn and you have to learn to then implement it. You then cannot think it can be done by yourself. You have to take your time and keep applying what you have learned. That's why Vishal ने अभी जो बोला कि मैं बहुत टाइम नोट्स को रिफर करता हूँ, ये बात मुझे कितने स्टूडेंट्स ने कही है, that we keep that diary with us when we are having the time. हम actually उस चीज को वापस वापस पढ़ते हैं, हमने जो जो लिखा, हर एक फैकल्टी की बातें, और जितना पढ़ोगे उतने बेटर होते जाओगे. There is no doubt on it. Vishal, I have Priya Daga also, who has written that she has also worked with you, and Yes, she's saying a hi to you. प्रिया जी हमारे साथ में थे, इन्होंने भी हमारी एक डेस्टिनेशन वेडिंग में वर्क किया था. शी हैड डन अ गुड जॉब. Wow, so cool. Very nice here, Vishal. I'm so glad to see all of you all connected. I think एक अलग से reunion करना चाहिए in डेफिनेटली. off-season time. Harshad is here from our first batch. Harshad had done wedding planning, and now his sister, Dr. Neha, did the design decor course in the last batch. तो मेरा तो अभी ऐसा हो गया कि इस फैमिली के साथ ही रिलेशन हो गया है, बिकॉज डॉक्टर नेहा के हस्बैंड आए थे कॉन्वोकेशन में. जो कॉन्वोकेशन आपने मिस किया ना, वो वाला. आई एम सो सॉरी. नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही सुना रही हूँ, मैं मौका नहीं छोड़ती सुनाने के लिए. नहीं, उस टाइम पे भी हमारा एक इवेंट चल रहा था, इसलिए और दैट वाज अ बिग इवेंट, तो मैंने कोशिश करी आने की, बट आई मिस्ड. No, no, as long as you miss such occasions for work, I have no complaints. Work is worship. So, Harshad, I hope you're doing well, and I hope everything is going good with your Canada office. I remember you had started operations over there. Sid is also here, Siddharth Agrawala. I hope you're doing well. So many people. Arpit is writing to you, Vishal, that your journey is truly inspiring. Oh my God. It's so थैंक यू good सो to मच see. अर्पित. Great, Vishal. Now tell me, what are the plans for the next 2 months? Is it season time for you, or are you going to be chilling and romancing with your wife? सब चीज को मेंटेन करना पड़ेगा, बट राइट नाउ वी हैव सम मीटिंग्स, बिकॉज राइट नाउ वी आर ओनली वर्किंग फॉर एनआरआईज इन उदयपुर. सो उनका वेन्यू बुकिंग और ये सारी चीजें ऑफ सीजन में होती है. लाइक इफ यू विल से कि हमारा ऑफ सीजन है, बट नो, देर आर ऑल 365 days आर वर्किंग डेज फॉर अस, बिकॉज एवरी डे वी हैव अ जूम कॉल इन द अर्ली मॉर्निंग, इन द लेट नाइट, क्योंकि यूएस और इंडिया टाइम इज वेरी डिफरेंट. तो उसको मैच करना सारी चीजें. उसके बाद में देर आर सो मेनी न्यू होटल्स एज वेल, तो उनके साथ मिलना, सारी चीजें समझना, ऑफर करना, बहुत ज्यादा चीजें हैं. इन जून, इन नेक्स्ट 2 months वी हैव मल्टीपल रेकीज विद द क्लाइंट्स एंड मल्टीपल विजिट, तो उनको साथ में घुमाना, सारी चीजें. तो सब चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी, बट वी आर गोइंग टू यूरोप एज हाँ, वेल. बच गए बेटा, बच गए. अभी लॉग आउट हो जाती थी वो. अभी आईडी ब्लॉक हो जाता मेरा, उधर से क्लोज हो जाती. Oh God, oh God. Hemang is asking, Vishal Bhaiya, from where are you? Which city? उदयपुर, द So सिटी you've ऑफ लेक्स, gone. जहां पे आप सब आते हो, जहां पे अगर कोई भी इवेंट प्लानर है और अगर वो उदयपुर नहीं आता, तो ही इज नॉट अ इवेंट प्लानर. I वहां से agree. हैं हम. And this is your hometown as well, right? You were born यस more यस here. यस यस. Hmm. Here you have Touch Star event writing. He is very honest with work. And I have Makhan Biryani saying both are महिमा hustlers. महिमा महिमा मखन है बिरयानी. महिमा महिमा जैन. Oh, Mahima Jain. Okay, she's writing both are hustlers, romantic hustlers. थैंक यू Rahul बिरयानी, is थैंक यू. writing, Vishal, I'm coming soon to Udaipur to work with you. Rahul Das. यस यस यस. वी मेट इन वियतनाम. ही वाज आल्सो इन टीडब्ल्यूएस. Oh, that Rahul. यस Oh, यस. and ही how इज did फ्रॉम you all meet? बेंगलोर. Yes, and how did you all meet in Vietnam? हम वियतनाम में घूम रहे थे, ये भी वहीं पे घूम रहे थे, तो इन्होंने मुझसे देखा और मेरे पास आ गए, फिर बोले कि विशाल भैया मैं टीडब्ल्यूएस से हूँ. अब मैंने आपके फोटोज देखे, सारी चीजें, तो वहां पे हम मिले.
Oh God. Sweetie, Deepika, Hemant, Usha ma'am, Sharon. I hope you all are listening to this. You gotta be a part of this. It's crazy. I just love TWS is it. worldwide. Totally. One big happy family. Yes. Akshita is writing, had a mini reunion with TWS people at this wedding, at his wedding tribe. Oh, is it? Akshita is the one who's also worked with you on your Yes. She Merosa. was in Rafael's project. Ah, Rahul is writing, yes. Hemang is writing, ma'am, joining rest after 12 is okay. Yes, it is. I think Deepika has been in touch with you, Hemang. कभी कभी ना लाइफ में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए. यू शुड बिलीव कि कोई कुछ कर रहा है तो अच्छे इरादे से ही कर रहा है एंड गो विद द फ्लो. तुम्हारी नीयत अच्छी है तो तुम्हें अच्छे लोग ही मिलेंगे ऑन द वे. सो बी कमिटेड एंड डोंट वरी हेमंग, हम इधर ही है. वी आर रियल पीपल. हेमान मैंने तो इतना कुछ सोचा भी नहीं था व्हेन जब राफेल सॉरी स्वाहा का एक इवेंट था उदयपुर में और मैम ताज अरावली में आए हुए थे तो मैंने एक छोटा सा मैसेज ही किया था मरीषा मैम को, हाय मैम. तो उस टाइम से हमारा कनेक्शन शुरू हुआ और उसके बाद में ये सारी जो चीजें आप देख रहे हो ये इससे शुरू हुई. तो कभी सोचना नहीं कि कैसे क्या होगा, जस्ट गो विद द फ्लो. Actually, it was just by fluke that Vishal had written on Insta. You had DM me, right? यस. I remember telling Harsh that, hey, I've just got a message from this यस guy, यस Vishal. सर, फिर आपने हर्ष जी के नंबर दिया, हर्ष भैया से मैं मिला. मतलब ये चीज भी होना कितना इंपॉर्टेंट है. यू आर सो काइंड कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप मिलो. बाकी लोग मैसेज भी देखने के बाद इग्नोर कर देते हैं. Yes. But you know what, विशाल, मुझे really लगता है कि यार जब जब हम एज इंडिविजुअल्स को मौका है, मैं तो हमेशा आई एम लुकिंग आउट कि मुझे कब अच्छे लोग मिले, मेरे से जुड़े, उनका एक्सपीरियंस मुझसे कम हो, इट डजेंट मैटर, बट लोग अच्छे होने चाहिए अराउंड यू. एंड यस. जिसमें भी वो करेज है जो आप बोल रहे हो ना, आपने मैसेज किया, कितने लोग सोच के मैसेज नहीं करते, ये सोच के कि वो कहाँ जवाब देंगी, क्या होगा. तो कभी कभी वो स्टेप लेना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है फॉर द पर्सन यू आर, कि यार इंसान ने एक अप्रोच तो किया, तो कुछ तो बात होगी, उसको कहीं तो पहुंचना होगा इन लाइफ. दैट्स व्हाई दैट हंगर and expressing it is so important. Oh God, so much to chat. I'm going to now have to sign off, but thank you, Vishal. It was थैंक यू सो मच awesome. मैम. बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच. Lots of love to you. Have a great life and थैंक यू keep मैम. rocking and keep shining. And whenever यस we are मैम. in Udaipur, I'm sure everyone's going to reach out to you. यस यस डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. बाय बाय गाइस. Bye. With that, I'm also going to sign off, everyone. Thank you so much for being a part of this live. What an amazing time I've had chatting with Vishal. I feel so, so, so proud of him. Lots of love to the entire TWS tribe, to the TWS team who makes this really happen and has turned so many budding players into real professionals who are doing good work. So, good job, guys. Keep it up. Rahul is writing all the best. Priya is writing congratulations, all the best, and good luck, everyone. Have a great weekend ahead, and we'll see you next Friday, hopefully with another tribe member. See you soon. Take care. Bye bye.